اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مستشفیٰ فیضان مدینہ کے مریضوں کی فرمائی عیادت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، نگران شورا نے فرمایا مدنی مشورہ شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں کا۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، سلسلہ فیضان سحری میں رکن شورا ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مجلس رابطہ کی حلیم عادل شیخ سے ملاقات۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ اپنے مدنی پھولوں سے اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ آپ نے بتایا غلبہ عشق غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کئی سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ نعت سنتے وقت تو خوشی ہونی چاہیے، رونا کیسا، یہ بھی سوال تھا، اور بھی بے شمار۔ مدنی پھول بما رمضانی کسوٹی کا سلسلہ ملاحظہ کیجیے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ اگر کوئی شخص اعلان گناہ کرتا ہے تو کیا اس کی برائی بھی کرنے والا بھی غیبت کا مرتکب ہوگا؟ جس نے علانیہ گناہ کیا، اگر اس کا پیچھے سے کسی نے تذکرہ کیا اس برائی کا جو اس نے کی علل اعلان، تو اس کو تو لکھا ہے کہ یہ گناہ بری غیبت نہیں ہے۔ کیا مدنی منی کا نام کنز الایمان رکھنا کیسا ہے؟ کنز الایمان کے معنی ایمان کا خزانہ، نام ویسے یہ رائج نہیں ہے، رکھنے میں رج بھی نہیں ہے، اس میں خود ستائی ہے، یعنی جس کو اپنے منہ میاں مٹھو بولنا، تو ایسے نام جس میں اپنی تعریف ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہے ممانعت، منع ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے کہ نام ہوتا ہے سجاد، اور دیکھو تو وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، سجاد میں نے بکثرت سجدے کرنے والا۔ بہتر وہ نام ہوتے کہ جو بزرگوں سے منسوب ہوں، جیسے ولیات جو ہیں، صحابیات ہیں، ان کے نام سے برکت لینے کی نیت سے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ بابا نام محمد کی کیا برکت؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت یعنی جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھو نام رکھنے میں شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ویسے نام محمد رکھا بغیر کسی اچھی نیت کے تو جائز تو ہے، لیکن ثواب کا حقدار نہیں ہوگا نا۔ نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے فضائل بتائے، اب کسی کے والدین نے ان کا نام یہ نہیں رکھا تو کیا تبدیل کر سکتا ہے، یا اس کی فضیلت وہ اگر کیسے نام برا رکھا ہے تب تو تبدیل کرنا ہوگا، اور ویسے بھی اگر کوئی نام بدلنا چاہے تو با اختیار ہے۔ تو اب کسی کے نام تو غیر فلم ایکٹروں پر اور پتہ نہیں کیا کیا نام لوگ رکھتے ہیں، تو فلم ایکٹر کی کیا برکت ملے گی؟ تو اس لیے وہ
नाम बदल दिया जाए या वो नाम जायज़ है तो नीयत बदल दी जाए, कुछ कर लिया जाए। तो अगर किसी के नाम नहीं रखा मोहम्मद तो अब रख ले कि मेरा नाम मोहम्मद। अब उर्फ जो भी पुकारा जाता है वो नाम अगर जायज़ नाम है तो वो नाम चलने दे। बजरिए ओबी बेन आज मदनी मुज़ाकरे में बोंगा हयात जिला पाक पत्तन शरीफ पाक फरीदी काबीना सुभान अल्लाह हमारे साथ बाबा बराह रास्त इंटरनेट के जरिए टंडो आदम बाबुल इस्लाम सिंध पाक भिटाई काबीना खुसूसियत के साथ। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर हालत सफ़र में हूँ, मिसाल के तौर पर मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा हूँ और मेरे कान में जो है अजान की आवाज़ आती है, उसका जवाब भी देना चाहिए। अब जब मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मेरे कान में आवाज़ आती है अल्लाह अकबर, इतने में मैं कुछ फासला तय करता हूँ तो साथ ही दूसरी मस्जिद से जो है आवाज़ आ जाती है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कि मैं पहली अजान का जवाब दूँ या दूसरी का दूँ, तो तीसरी मस्जिद आ जाती है, वहाँ से अजान की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे किस अजान का जवाब देना चाहिए? इसमें यह कि अगर कोई मजबूरी नहीं है तो गाड़ी साइड पर रोक कर अजान का जवाब देता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये सवाब का हकदार है, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई इस तरह सफ़र जारी रखता है तो इस पर कोई गुनाह भी नहीं है। सदका फितर में कितना किलो आटा होना चाहिए? सदका फितर की मिकदार 2 किलो में से 80 ग्राम कम गेहूं या उसकी रकम है ना, जो भी वहाँ उसकी रकम है। अब बाबुल मदीना में इसकी कुछ रकम होगी, तो मरकज़ुल औलिया में कुछ, तो हिंद में कुछ, तो यूके में कुछ, मदीने में कुछ, मक्के में कुछ। तो जहाँ वो है और फितरा दे रहा है वो, तो ये वहाँ के भाव से दे दे। मदनी कसौटी। प्यारे बाबा जान, आपकी मुरादी शे इंसान है? ला। आपकी मुरादी चीज़ जो है उसका ताल्लुक फरिश्तों से है? ला। क्या आपकी मुरादी शय कोई मुक़द्दस मकामात है? ला। आपकी जो मुरादी शय है क्या वो बेजान चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है? नक़म। क्या आपकी मुरादी शय कोई किताब है? ला। आज मदनी मुज़ाकरे में उसका तज़किरा हुआ है। ला। मुरादी शय का ताल्लुक मिट्टी की जिन्स से है? नक़म। कोई पहाड़ है? ला। आपकी मुरादी शय ज़मीन का कोई मखसूस हिस्सा है? ला। क्या उसका ताल्लुक खाना काबा शरीफ से है? नअम। क्या तवाफ़ में उसका इस्तेलाम करते हैं? नअम। बाबा ये हमारे इस्लामी भाई अपने आप को आप पेश कर रहे हैं, वक्फ़े मदीना हो रहे हैं। हाज़िर कबूल। माशाअल्लाह, कबिल तो। आपकी मुरादी शय हजर अस्वद है? जवाब दुरुस्त है। खाना खाने की सआदत पाई आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों ने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के हमरा, जबकि सिलसिला सहरी की बरकतें भी इस मदनी खबर में मुलाजा कीजिए। शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, सय्यदा ज़हरा, सय्यदा ज़हरा, सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा। है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, शरफ गासिल है उनको, शरफ गासिल है उनको दामने ज़हरा से निस्बत का, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादी कौनैन है सय्यदा ज़हरा। रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान। बख्शिश मिलेगी सबको
रहमत मिलेगी सबको, बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, ये कह रही हवा है रमज़ान आ गया है, ये कह रही हवा है रमज़ान आ गया है। रमज़ान 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 फैज़ाने रमज़ान 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 फैज़ाने रमज़ान। सिलसिला कामयाबी का रास्ता में निगरान शूरा ने समझाया नशे के आदी अफराद को इस बुरी लत से बचाने की आपने सही फरमाई। नशा किसी भी तरह का हो, नशेबाज की हलाकतों का ही सामान होता है। जबकि सिलसिला फैज़ान सहरी में भी निगरान शूरा ने मदनी चैनल के नाजरीन को अहम पैगाम दिए। झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं। झूठ बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आम है, बिलखुसूस जो बच्चों के साथ जो मैटर्स इस वक्त चल रहे हैं उसमें झूठ की काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं। जो ट्रेनिंग बच्चे की हो रही है वो दुरुस्त नहीं हो रही है। घर में हम भी झूठ ना बोलें, हम भी फौहश कलामी ना करें, बुरी बातें ना करें, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी ना करें, इंशाल्लाह घर का माहौल इसी तरह बनता है। घर में चिल्ला कर बात करोगे बच्चे में चिल्ला कर बात करने की आदत होगी। घर में लोग धीमी बात करते होंगे तो बच्चे में धीमी बात करने की आदत होगी। घर का जैसा माहौल होता है उसको बच्चा कबूल करता चला जाता है। माशरे की एक तादाद है जो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार है। रोज़े के अंदर बंदे को किसी चीज़ की तलब नहीं होती है, सिर्फ पान की, गुटखे की, बस इसी चीज़ की तलब रहती है। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं, तकरीबन सारे गुटखा खाने वाले, लेकिन कोई भी रोज़ा ना छोड़ता है। हो सकता है कि इस वक्त ऐसे कई इस्लामी भाई और घर के अफराद इस सिलसिले में शामिल हो जो इस आदतों में मुब्तला हों। अपने मुंह को बर्बाद करें, अपने मतलब कि गालों को आप सड़ाएं, अपनी ज़बान को आप सड़ाएं और मुंह का कैंसर, माज़अल्लाह गले का कैंसर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपका बेटा अगर आपके सामने गुटखा खाए तो आपको अच्छा लगेगा? आप यही कहेंगे कि मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकूँगा कि मेरी औलाद ये सब करे, क्योंकि मैं मुब्तला हूँ तो मैं कैसे अपनी औलाद को इस तरह होता देखूँगा। अच्छी बात है, आपकी ये औलाद से मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखिए कि आपके माँ बाप आपको देख नहीं करते हुए। बाज़ औक़ात सिगरेट पीते पीते सोने वालों के जलकर मरने के वाक़यात मिलते हैं। पान तो छोड़ नहीं सकते, सिगरेट तो छोड़ नहीं सकते, खाली खाली फोकाटियाँ मारते हैं। आप इधर उधर की बातें करते हैं कि मैं ये भी करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एक नफ्स है उसको काबू नहीं पा सकते, एक ख्वाहिश है उसको रोक नहीं सकते। आपको इतनी दुनिया भर की तकलीफ़ें होती हैं, आप अपने रब से दुआ मांगते हैं, क्या आपकी तकलीफ़ें दूर नहीं हो जाती? तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से नमाज फजर और नमाज मगरिब का भी ताल्लुक है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पूरा साल किसी ने फोन करके अपनी नमाज फजर या नमाज मगरिब के बारे में कोई मसला पूछा? ऐसा यही हम कह रहे थे कि आज सबको इफ्तार का वक्त ज़बानी याद है, इसके बाद मगरिब का वक्त याद होता है। हमारे जो मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं इनको चाहिए कि इस्लाम और दीन के बारे में जो ज़रूरी मसाइल और ज़रूरी अहकाम हैं इसके मुतालिक अपनी अप्रोच बढ़ाएं और अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। यानी जिस तरह सफर करते वक्त भाई साहब हम ये देखते हैं कि वहाँ करेंसी कौन सी चलेगी, मौसम कैसा होगा, वहाँ जाके रहेंगे कहाँ पर, इसके साथ साथ हमें ये भी पहले से मालूम कर लेना चाहिए कि वहाँ नमाज के टाइम टेबल क्या हैं। असल मसला ये है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल ज़ात पर रहम फरमाए। आमीन। अच्छा खासा नमाजी आदमी है ना, ये फ्लाइट के अंदर नमाज कज़ा करता है, यानी ऐसा समझते हैं कि जैसे कि जहाज के अंदर नमाज माज़अल्लाह जैसे कि माफ है। कहते हैं ऐसा बाद में पढ़ लेंगे। क्यों बाद में पढ़ लेंगे यार? नमाज को बाद में पढ़ने वाली है, नमाज को वक्त पढ़ने वाली है। अगर शर्त फोत हो जाए तो मशरूत फोत हो जाता है। चले जनाब, तो नमाज की शर्त है वक्त और वक्त का एहतमाम, उसका ख्याल रखना। मेरे चैनल के नादरीन थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके घर में वो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है नहीं है? और बास कंपनी अच्छा कैलेंडर निकालती तो उसके लिए बाकायदा लाइन में लगते हैं कि यार इधर का कैलेंडर मेरे को मिलना चाहिए। आपने सारे घर में लगा, इतनी फ्रेम में लगाया, इतना कैलेंडर लगाया, सब कुछ लगाया, नहीं लगाया तो नमाज के कैलेंडर नहीं लगाया यार, जो हमारी 5 टाइम नमाज फर्ज है हम पर। अभी साहिब मेरा सवाल ये है कि आलिम साहिब हमें शरई मसाइल समझा रहे होते हैं, तो क्या ये भी जिक्रुल्लाह है? शरई मसाइल सीखना तो ये बहुत जबरदस्त जिक्रुल्लाह की किस्म में शामिल है। जो औरतें कहती हैं कि आंखों का पर्दा जरूरी नहीं, दिल का पर्दा होना चाहिए, उनका इस तरह कहना कैसा है? किसी को नेकी परहेजगारी तकवे की बात करो ना, बस अंदर होनी चाहिए अंदर। अब अगर अंदर में कुछ है तो बाहर क्यों नहीं है? अंदर ठंडा बाहर गर्म तो नहीं होगा ना,
अगर अंदर गर्म है तो बाहर भी गर्म है। पर्दे का तो बयान कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि जो शरीयत मुताहरा ने इस्लामी बहनों को पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया, इस्लामी बहनों को चाहिए कि उसी तरह पर्दा करें। जहन्नम की आग, कब्र का अजाब, कब्र के सांप, कब्र के बिच्छू, कब्र के अजदहे, जहन्नम का जो बयान है, क्या ये हम भूल गए? क्या हम इतनी बेबाकी की बात करेंगे कि अगर अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से अल्लाह नाराज़ हो गया, उसके प्यारे हबीब रूठ गए और हमें जहन्नम की आग में डाल दिया गया? ये डरने के लिए कह रहा हूँ कि बेबाकी दुरुस्त नहीं है। ये बेबाकी वाले लफ्ज़ हैं कि गुनाह पर डटे रहो, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहो और फिर इस तरह की बातें करते रहो। शख्सियात और दीगर इस्लामी भाइयों के मदनी मशवरे में निगरान मरकजी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने अपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी मशवरे के मदनी फूलों की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, आप एक बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, तिजारत करते थे और तिजारती सफ़र किया आपने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। मगर जो ही आप ईमान लाते हैं, मुसलमान होते हैं, वैसे ही आपने गौर किया कि आपके जो दीगर जो पहले से जो दोस्त थे और जिनसे जान पहचान थी, सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, बहुत बड़े ताजिर थे। अगर मैं कहूँ कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मशहूर है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बहुत सारा माल था और वाकई था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुख सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस तरह के कई सहाबाए कराम वो हैं जो ईमान लाए हैं सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन्फादे कोशिश से। इमीडिएटली आपने रुख किया कि जो नेमत मुझे मिली है वो नेमत अब मेरे दीगर साथियों को भी मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए अर्ज़ कर दी। मैटर ये है, हम सब इस बात पर शायद मुत्तफ़िक होंगे कि माशरा तेज़ी के साथ बिगड़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा मतलब अपने किरदार में ये है कि हम सही लोग नहीं हैं। हम लोग गिबतें करते हैं, हमसे चुगलियाँ होती हैं, हमसे तोहमतें लगती हैं, हमसे बदनिगाहियाँ होती हैं, हमसे म्यूज़िक नहीं छूटता, हमसे गाने बाजे नहीं छूटते, बहुत सारी चीज़ें जो हमसे ज़ाती तौर पर छूटती नहीं हैं। तो यूँ अपने ज़ात में भी हम बराबर के मुजरिम हैं। 6000 प्लस मुतक़िफ़ीन और बाकी इनके साथ और इस्लाम में होते हैं। अब ये जो यहाँ आए 6000 प्लस का किसी जगह पर 30 दिन के लिए जमा हो जाना, ये एक मतलब हिस्टोरिकल है। 2 जगह हैं जहाँ पर मुसलमानों का रश आपको मिलेगा, एक मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ में। वो तो उनकी अज़मतों को तो कोई बयान ही नहीं है। मगर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको दुनिया में शायद ये वाहिद मस्जिद मिलेगी जिसमें 6000 प्लस इस्लामी भाई 30 दिन के लिए जमा हो गए। कि मैं नहीं समझता कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों इसी मस्जिद नज़र आ जाए कि जिसमें इतने बैठे हैं और इतने शेड्यूल के साथ इनको हम चला रहे हैं। ये हुआ कैसे? नेकी की दावत से। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको। फैज़ान मदीना में नशस्त की हज़रत इमरान अत्तारी साहब के साथ, जो बातें उन्होंने दीन की कहीं और जो उन्होंने बड़ी सादे इंतहाई मौसर अंदाज से बातें जो समझाई हैं, वो यकीनी दिल को और दिमाग को दोनों का असर करती हैं। हज़रत इमरान साहब से मुलाकात हुई, उनकी नशस्त में जो बातें उन्होंने हमें सिखाई, बताई, दिल को बहुत लगी। और ये हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बाहर निकल के यही बातें हम अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को जो मिलने वाले हैं उनको यही चीज़ें बताएंगे भी। इमरान साहब की जो बातें थीं, जो बिल्कुल सही कहा कि सादा मगर बहुत ही मुअस्सर किस्म की बातें थीं, तो यकीनी तौर पे मैं पिछले साल आया था थोड़ी देर के लिए और आज इत्तेफाक हुआ। तो कोशिश ये होगी कि आइंदा इस तरह की महफ़िलों के लिए टाइम निकल सके ताकि अपनी इस्लाह, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम चूँकि बहुत सारी कोताहियों का शिकार हैं, तो उनको दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी इस्लाह कर सकें।
اور اس کے بعد پھر شاید ہم کوشش کریں کہ دوسروں کی اصلاح پہ کام کر سکیں۔ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آمد سے قبل تذکرہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرمایا نگران شورا نے۔ مدنی پھول دیے۔ مدنی چینل کے پی سی آر سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جانے والی ٹرانسمیشن آپ بھی دیکھیے۔ جو ہم ذکر مبارک کرنے جا رہے ہیں وہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جو حنبلیوں کے امام ہیں۔ اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حنبلی تھے۔ ماشاءاللہ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ، نام و نسب احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد۔ آپ کی ولادت 164 سن ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اب آپ تھوڑا غور سے سنیے کہ یہ علم دین کا ذوق کیسا تھا۔ سب سے پہلے آپ بغداد کے محدثین و فقہاء سے علمی استفادہ کیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ، اس کے بعد مدینہ منورہ، پھر کوفہ، پھر بصرہ، پھر یمن، پھر شام، پھر آگے کوئی جزیرہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے آپ کے اساتذہ کی فہرست دیکھی تو بڑے بڑے نام آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے استادوں میں تھے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اساتذہ میں، یحییٰ بن سعید قطان، سفیان بن عیینہ، عبدالرزاق، یہ بڑے بڑے مطلب رحمہم اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نام ہیں یہ، اور جن سے آپ نے علم حاصل کیا آپ کے اساتذہ میں۔ اور جب آپ کے شاگردوں کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد سختیانی رحمہم اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگان دین یہ آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر رات ایک منزل قرآن حکیم پڑھتے اور 7 روز میں قرآن مجید ختم فرماتے، پھر صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے۔ آپ ہر روز 300 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوڑے برسائے گئے، کمزور پڑنے پر جو آپ کی جو 300 رکعت تھی یہ کم ہو کر کتنی ہو گئی ہوں گی؟ 150 رکعت ادا فرماتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی وفات کے 230 برس کے بعد آپ کی قبر کے پہلو میں جب ابو جعفر بن ابی موسیٰ کے لیے قبر کھودی گئی تو اتفاق سے آپ کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ 230 برس گزر جانے کے باوجود حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کفن صحیح و سالم اور آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جو کتاب آج ہم لائے ہیں تعارفی طور پر، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بھائی اس کو ہدیتاً مقتۃ المدینہ سے حاصل کرے، وہ ہے فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ۔ مجلس افتاء کی ایک زبردست پیشکش ہے۔ مناجات افطار میں گریہ و زاری اور خوب رو رو کر اسلامی بھائیوں نے توبہ کی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والی مناجات افطار میں نگران شورا نے دعا کروائی، جبکہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والی مناجات افطار میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کسی بھی مذہب میں جھوٹ کے جواز یعنی جائز ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ دور جہالت میں بھی طرح طرح کی برائیوں کے شکار خونخوار کفار بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے۔ جھوٹ جسے کفار تک برا قرار دیں، پھر کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو کس قدر شرم کی بات ہے۔ لائے جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقعے یعنی حقیقت سے الٹ بات کرنا، یعنی سچ کا الٹ جھوٹ ہے۔ مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کیا زید گھر پر ہے؟ زید گھر پر موجود ہے، یہ جاننے کے باوجود آپ نے جواب دیا کہ زید گھر پر نہیں ہے، تو آپ کا یہ جواب جھوٹ اور گناہ ہوا۔ یاد رکھیے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جھوٹ تمام مذاہب میں حرام ہے۔ جھوٹ بولنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ جھوٹ بولنا مومن کے شایع نشان نہیں۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ توبوا الی اللہ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا دے دے، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے، ہمیں بلا حساب مغفرت سے نواز دے۔ آپ فضل و کرم سے
ہر خطا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد معتکف ہے جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی سعادت پا رہی ہے۔ خصوصیت اس اعتکاف کی یہ ہے کہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول جو آپ نے بعد فجر مدنی حلقے میں دیے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے اور ان کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ وہ رسولہ اور بہت سے رسول۔ ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا، اور بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ان سب رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام میں وہ کتنے ہیں جن پر یکبارگی کتاب اتری؟ تو جب سب نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام پر یکبارگی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یکبارگی کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کے جواب کا حصہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، جس سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب کا یکبارگی نازل ہونا بھی دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کے ایک حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام انبیاء بنی اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے، جیسے ہر نبی کریم اللہ نہیں۔ روزانہ ایک نئی خوشبو لیے مدنی پھول سلسلہ ہے فیضان سحری، جس میں رکن شورا ہر روز ایک نئے موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں۔ سلسلہ فیضان سحری مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ مختصراً جھلکیاں آپ کے لیے یوں تیار کی گئی ہیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا ہی نہیں اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا، پھر سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، بارگاہ الہی سے تو مجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرا ذکر اللہ
रद्द ही ना कर दिया गया हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारगाह इलाही से मुझको हुक्म हुआ है कि तेरे पास जाऊं और तुझको बताऊं कि जो तू अल्लाह ताला का जिक्र करता है वही हमारा जवाब है। तेरे दिल में जो सोजो गुदास पैदा होता है वो हमारा ही तो पैदा किया हुआ है, और ये हमारा ही काम है कि तुझको ज़िक्रुल्लाह में मशगूल कर दिया है। तेरे हर बार या अल्लाह कहने में हमारी 100 लब्बैक पोशीदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ईमान अफरोज़ वाक़या है। यानी जो ज़िक्रुल्लाह करता है, अब बाज़ औक़ात लोगों के ज़हनों में सवाल, शैतान का तो काम ही यही है ना, वसवसे डाले कि भाई तुम अल्लाह को याद कर रहे हो, वहाँ से तो कोई जवाब आ नहीं रहा। अरे जो पुकारने का सलीका देता है, जो पुकारने की तौफीक देता है, उसी का तो करम है कि हमारी ज़बान उसका जिक्र करती है। पूरे माह रमज़ान का एतिकाफ़ मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। कल हिंद से पेश किया तो आज हम बांग्लादेश और पाक खुर्शीदी काबीना खानपुर पंजाब पाकिस्तान से आशिकाने माह एतिकाफ़ के मदनी काम दिखाते हैं। सीखने सिखाने का सिलसिला भी जारी है। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, 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 फैज़ाने रमज़ान, 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 फैज़ाने रमज़ान। रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है। रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है। तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है। तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है। रमज़ान, रमज़ान। खानपुर में 30 रोज़ा इत्तिकाफ़ की सआदत मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ हम इत्तिकाफ़ में हमें गुस्ल के फ़राइज़ और बहुत कुछ सुन्नतें सीखने को मिल रही हैं। मैं मदनी चैनल के ज़रिए तमाम इस्लामी भाइयों को से अर्ज़ करता हूँ कि 10 रोज़ा इत्तिकाफ़ बैठें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इत्तिकाफ़ में बैठने की बरकत से हमें बहुत दीन का इल्म मिलेगा। 30 रोज़ा इत्तिकाफ़ बैठने की सआदत मिली है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़ और बहुत कुछ दीनी मालूमात हमें यहाँ पे मिल रही है। दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में 30 रोज़ के इत्तिकाफ़ के लिए सादत नसीब हुई है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। 30 रोज़ा इत्तिकाफ़ में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 5 वक्त बाजमात नमाज अदा कर रहा हूँ और तराबी इंशाल्लाह पूरी पढ़ता रहूँगा। मैं आप सभी कहूँगा आखिरी 10 रोज़ा इत्तिकाफ़ के लिए आप भी तशरीफ़ लाएँ। शर्जील मीर, प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस यूनियन रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान, और मोहम्मद शाहिद, बिजनेसमैन से मजलिस दारुल मदीना के इस्लामी भाइयों ने रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में मुलाकात की। इन्होंने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। मजलिस दारुल मदीना की कोशिश देखने रावलपिंडी चलते हैं। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हलीम आदिल शेख MPA बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से मजलिस राब्ता के इस्लामी भाइयों ने मुलाकात की। इन्होंने मदनी चैनल को मुबारकबाद दी। मदनी चैनल की बराह रास्त ट्रांसमिशन पर आपको भी दिखाते हैं मुलाकात का अहवाल। सारे जहां में मच जाए धूम, सारे जहां में मच जाए धूम। इस पे फिदा हो
शोबे तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ दफातर और क्लिनिक्स में दरसे फैज़ान रमज़ान की तरकीब बनाई गई। इस्लामी भाइयों को फैज़ान रमज़ान तोहफे में दी गई। इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को इस मौके पर अपने तासुरात भी दिए। हमारे प्यारे पीर साहिब जनाब मोहम्मद इलियास अतार ने जितनी मेहनत की है उसका अजर अजीम अल्लाह ताला की पाक ज़ात उनको अता फरमाएगी। मदनी चैनल को अल्लाह ताला तरक्कियों से सरफराज फरमाए। माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि एक बार आने से बार बार दिल करता है और मैं अब हर इज्तिमा पे हर मसरूफियत छोड़ के मैं यहाँ पे शिरकत करता हूँ ताकि मुझे दिली सुकून हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक आलमगीर गैर सियासी तहरीक जो बापा जान के साया करम से चल रही है। मदनी चैनल हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं मदनी चैनल से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने लर्न की हैं, जिस तरह के मालूमात का ख़जाना मिलता है हमें और अमल का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है मदनी चैनल को देखने से। बहुत से लोगों ने, मेरे कई दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है ना इसकी वजह से दाढ़ियाँ रखी हैं। पाक हामिदी काबीना लतीफ़ाबाद, जमजम नगर, हैदराबाद, बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में मजलिस नशर व इशाअत के इस्लामी भाइयों और निगरान पाक हामिदी काबीना ने मकामी न्यूज़ के ऑफिस में मदनी हल्के में सुन्नतों भरा बयान किया और दावत इस्लामी का तारुफ पेश किया। मदनी चैनल के 6 साल पूरे होने पर मकामी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हाजी जुनेद खानजादा और हैदराबाद प्रेस क्लब के 9 मुंतखब सदर अल्ताफ कटौटी ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। आ गया रमजान है, आ गया रमजान है। मदनी चैनल की इंतज़ामिया और ख़ासकर मौलाना इलियास कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी जितनी दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके मुंतज़िम हैं, उनके रहनुमा हैं, उन सबको मेरी जानिब से मुबारकबाद हो और इस सिलसिले को बरकरार रखा जाए ताकि जो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो इस्लाम से दूर है, जो सुन्नतों से दूर है, वो इस तरफ बढ़ती रहे और एक ये काम इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए जो लोगों के लिए जब से ये शुरू किया गया है उसके बाद ये ज़रूर हुआ है कि मसाजिद के अंदर नौजवानों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है बनिस्बत माजी के मुकाबले में बुज़ुर्ग मस्जिदों के अंदर आते थे, अब नौजवानों की तादाद ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो मैं अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब को और दावत इस्लामी की पूरी शूरा को, मरकज़ी शूरा को, तमाम स्टेशंस के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उन तमाम को इस बात पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस साल मदनी चैनल को 6 साल पूरे होने को जा रहे हैं और जिस वक्त ये मदनी चैनल का आगाज़ हुआ था उस वक्त इस चैनल की अशद ज़रूरत थी क्योंकि मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क ऐसे बहुत सारे चैनल तो मौजूद थे लेकिन एक खालिसतन मजहबी चैनल जो है ना उसकी गुंजाइश बाकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो गुंजाइश, वो खला को जो है मदनी चैनल ने पूरा किया और मदनी चैनल की लॉन्च करते हुए जिस किस्म का हमें बताया गया था दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करते हैं कि वो अपने उसी तरतीब और जो एक जदवल है उसके मुताबिक चलाया जा रहा है इस चैनल को।
جس سے اب لوگوں کو اسلامی معلومات کے علاوہ جو ایک نئے سلسلے شروع ہوئے ہیں اس میں اسلامی تواریخ کے اندر جو اہم مقامات کی زیارتیں جو کرائی جا رہی ہیں اس سے بڑا جذبہ ایمان جو ہے نا بڑا بیدار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام اور مدنی چینل کی تمام تر کاوشیں جو ہے لائق تحسین ہیں اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ تمام لوگ جو اس چینل کے پیچھے ہیں. اور ہم کوشش کر اور ہمیں امید ہے کہ ان کی کوششیں جو ہے نا جاری رہیں گی اور ان کی ان کوششوں کے نتیجے میں ہم مزید ایسے پروگرام ضرور دیکھیں گے کہ جس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو اور ہم تمام لوگوں کا رخ جو ہے مساجد کی طرف ہو. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والا گزشتہ فجر کے بعد کا مدنی حلقہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست. انشاءاللہ عز و جل آج مدنی مذاکرے میں بذریعہ اوبی وین چشتی مہاروی کابینہ ڈونگا مونگا ضلع بھاول نگر سے اسلامی بھائی اجتماعی طور پر شرکت کریں گے، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ دولت پور ضلع نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان اور اوورسیز سے انشاءاللہ عز و جل ٹرینیڈاڈ یو ایس اے، کینیڈا، کوریا، کینیا، اٹلی اور عرب حجازی کے اسلامی بھائی شرکت کریں گے. انشاءاللہ عز و جل آج جو شعبہ جات مدنی مذاکرے میں خاص طور پر شرکت کریں گے مجلس مزارات اولیاء، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ اس مدنی مذاکرے کی تیاری کریں گے. جبکہ کل کا بھی جدول سماعت فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل کل بروز اتوار دعوت اسلامی کے اس اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے، اجتماعی مدنی مذاکرے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل خیرپور میرس باب الاسلام سندھ پاکستان سے بذریعہ انٹرنیٹ اسلامی بھائی شرکت کریں گے، جبکہ دیگر ممالک سے کھٹمنڈو نیپال، سری لنکا، لیسانیہ ساؤتھ، یو کے اور یو اے ای خلیج مدنی کے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل بذریعہ انٹرنیٹ شرکت کریں گے مدنی مذاکرے میں. جبکہ بذریعہ اوبی وین حاصل پور ضلع بھاولپور پنجاب پاکستان سے اور شعبہ جات میں مجلس ذرائع آمد و رفت کے اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے کی تیاری کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ بھی فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا